Today we are live on Amul, the taste of India, and today we are going to bake. Guys, are you on? Please start commenting so I can see you. Hello everyone. Start commenting so we can see you. Yeah, please send like so we can see you. Yeah. Hi everyone, good evening. Once again, welcome. Today we are live at Amul, the taste of India, and I am Chef Anuj Andra from Dalishi Bakers. We are a brand in Gurgaon. So today we are going to make chocolate fudge cookies. So it's a caramel fudge cookies. Guys, during this when we are going to bake this, so अगर आपको कुछ queries है इससे related, you can ask me anytime. So should we start it now? Yeah, firstly I want to introduce with the all ingredients. So आप जब बनाते हैं तो you can check it. This is our normal maida. So 160 gram. This is castor sugar. This is 70 gram. So Amul unsalted butter. It's not salted, it's an unsalted butter. 100 gram. It's a 20 gram condensed milk. It's Amul mithai made. And it's a half TSP of baking powder. And this is the fudge, caramel fudge, which we are going to use in cookies filling. And this one is vanilla essence. These tools we need for creamy method. So if you have any queries, you can ask me in between. So we are going to start it now. Firstly, हमें अपना it's an unsalted butter और ये room temperature पे है इस वक्त. It's not chilled butter because हमें creaming method use करना है and in cookies creaming method में आपको ये soft butter चाहिएगा. So you can see this, it's very soft right now. Then our condensed milk. Castor sugar. You can use electrical beater also, otherwise you can use a hand whisk also. Just cream it. आपको उसको इतना क्रीम करना है कि इसका कलर थोड़ा पेल हो जाएगा और ये सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाएगा. Guys, if you have any question, please ask. There are some questions. First one is, can we use normal sugar instead of castor sugar? Yeah, you can use normal sugar, but you have to grind it. आपको उसको थोड़ा सा अपने मिक्सर में डाल के थोड़ा ग्राइंड करना है और थोड़ा फाइन करना है. बिकॉज जब आप क्रीमिंग करेंगे, क्रीमिंग मेथड यूज कर रहे हैं आप, तो वो आपका प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा. सो इट्स बेटर कि आप उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर ले, थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में ले आए. Just a minute, I check your queries. जस्ट अभी हम कैरेमल फज कुकीज बना रहे हैं. वंस अगेन आई टेल यू. एंड इसमें हमने अपना बटर लिया है, देन कंडेंस मिल्क एंड कैस्टर शुगर. अब हम उसको क्रीम कर रहे हैं. हमें इसको क्रीम करना है टिल देन ये थोड़ा लाइट कलर थोड़ा पेल हो जाए एंड आपका ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए. आपका बैटर थोड़ा फ्लफी हो जाएगा तो आपका कुकीज भी क्रम्बली बनेगा. Chef, there is question from Frida. How to make caramel fudge? कैरेमल फज इट्स वेरी इजी. आपको फरीदा आपको जस्ट शुगर लेना है 200 ग्राम. देन आपको उसके साथ में शुगर में आपको बटर लेना 100 ग्राम
एंड 1/4 कप आपको वाटर लेना है, देन उसको जस्ट कुक करना है जब तक वो थोड़ा सा थिक ना हो जाए। जैसे ही थिक हो जाता है आप उसको रिमूव करके आपके पर्चमेंट पेपर पे या फिर आपका सिल पैड है उस पर डाल के उसको कूल डाउन कीजिए एंड कट इन अ पीसेस। इवन योर किड्स लव टू ईट दिस एट योर होम ऑल्सो, बिकॉज इसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल टॉफी जैसा टेस्ट होता है। इट्स अ टॉफी ऑल्सो, यू कैन कॉल टॉफी। Stefano, there are few viewers who join late, so if you can repeat what you are making and what are you mixing? Yeah, we are making caramel fudge cookies, and right now I am going to mix butter, then condensed milk, Amul mix I made of course, and castor sugar. अभी हम सिर्फ क्रीमिंग कर रहे हैं इसका। क्रीमिंग के लिए हमने क्रीमिंग में एज आई टोल्ड यू कि थोड़ा कलर पेल हो जाएगा एंड ये फ्लफी हो जाएगा। लुक एट दिस, नाउ इट्स लुक अ फ्लफी। Hope you are able to see this. I show you this by hand. अगर आप चाहें तो you can do with your whisk also, वो थोड़ा इजी हो जाता है, बट हमें यहाँ पे रेसिपीज को जितना इजी हो सके आप लोगों के लिए वो बनाना है। That's why I'm showing you with the both methods. Yeah, you can use whisk also. Sir, there is a question from Indra. If you can repeat the measurement. Yeah, sure. Give me 2 minutes. So because right now I'm not able to hear you. हम ऑलरेडी अपना हैंड से विस्क कर चुके हैं, इसको ऑलरेडी हैंड से क्रीमिंग कर चुके हैं, तो हमें ज़्यादा क्रीमिंग का ज़रूरत नहीं है अभी इसके लिए। बट आई शो यू कि आपको कैसे ये यूज़ करना है 1 की स्पीड पे, 2 की स्पीड पे, देन आपको इसको मीडियम स्पीड पे लेके जाना है और इसको थोड़ा पेल करना है, कलर में थोड़ा फ्लफी एंड पेल करना है। अब आपका ड्राई इंग्रेडिएंट सब लेंगे। It's a question what we are going to make. We are going to make caramel fudge cookies. अगर आप चाहें तो once again you can note it down. Otherwise you can visit the Delishi Baker page. You will get all the recipes. You will get a detailed recipe. Right now we are taking a 160 gram flour. It's a maida only, and half teaspoon of baking soda. उसको हमें डालना है and just mix करना है। Now it's time for vanilla essence. अब vanilla essence डालिए उसमें एंड उसको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। गाइस, कुकीज एंड बिस्किट्स बोथ आर डिफरेंट थिंग। कुकीज में क्या होता है, आपका कुकीज इज अ फॉर्म ऑफ केक, लिटिल हार्डर देन द केक। So cake not a cream वाला केक, your dry cake, dry premium tea time cakes, उससे थोड़ा हार्डर होता है। बट कुकीज एंड क्रीम बोथ कुकीज एंड बिस्किट बोथ आर डिफरेंट थिंग। आपका बिस्किट होता है जब आप उसको ब्रेक करते हैं तो वो स्मैकी साउंड करता है, बट कुकीज में ये नहीं होता, वो सॉफ्ट होता है। जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो वो इनसाइड थोड़ा सॉफ्ट रहता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कुकीज एंड क्रीम। कुकीज में हमारा जो फैट होता है वो भी कंपेरेटिवली आपके बिस्किट से ज्यादा होता है। सो इट्स वन ऑफ द रीजन कि आपका कुकीज सॉफ्ट मिलेगा आपको। एंड कुकी बनाते हुए आप उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर इफ यू लाइक ड्राई फ्रूट्स तो यू कैन ऐड ड्राई फ्रूट्स। अभी हमने सारा अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिया है। हमें इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा उसे मिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सारा बाहर की साइड आना स्टार्ट हो जाएगा। सो हम थोड़ा सा उसको पहले हैंड से मिक्स कर लेंगे, फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। Sir, there is a question from Kanan. For caramel fudge, do you mix sugar, cream and water all together at one time? Kanan, there is no need to use cream. अगर आप क्रीम यूज करेंगे तो वो आपका कैरेमल सॉस हो जाएगा, वो फज नहीं बनेगा। बिकॉज फज के लिए यू नीड अ लिटिल हार्ड कंसिस्टेंसी लाइक दिस। अगर आपने उसमें क्रीम डाल दिया तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। सो डोंट गो विद द क्रीम। आप अपना जो शुगर और आपका बटर का पार्ट है, बटर के पार्ट को थोड़ा सा एक्सीड कर दीजिए। यू कैन गो विद दैट। Now we are going to mix it.
स्पीड अभी हमारा सिर्फ 1 ही रहेगा, हमें हाई स्पीड पे इसको मिक्स नहीं करना है। हम कुकीज़ को ज़्यादा मिक्स भी नहीं करते हैं। यू नो व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज कुकीज़ में हमें ग्लूटेन फॉर्म नहीं करना होता है। ज़्यादा मिक्सिंग से ग्लूटेन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और ग्लूटेन आपकी चीज़ों को स्ट्रेची बनाता है और कुकीज़ कभी स्ट्रेची नहीं होता है। सो हम उसको ज़्यादा ओवर मिक्सिंग भी नहीं करेंगे। ओवर मिक्सिंग से आपकी कुकीज़ हार्ड भी होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें हार्ड भी नहीं करना है इसको और ग्लूटेन भी फॉर्म नहीं करना है इसमें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन गाइज यू कैन आस्क मी। Your big fan Vanshika is saying hi. Hello. Any other question? Yes, Chef, there is one question. Since you are using castor sugar and condensed milk is also with sugar, Yeah. so is it healthy? देखिए कुकीज हेल्दी हो सकता है, बट आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। दिस वन इज, आई विल नॉट से इट्स अ कम्प्लीटली हेल्दी, बट हाँ आपको थोड़ा चेंजेस अगर आप करते हैं तो आप सेम चीज को हेल्दी भी बना सकते हैं। दिस इज आवर ट्रेडिशनल रेसिपी, जो हमारा ट्रेडिशनल रेसिपी चलता आ रहा है विद आवर मैदा रिफाइंड फ्लावर, ये वो रेसिपी है अपना। सो आप इसको अगर हेल्दी बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू चेंज इट लिटिल बिट, लाइक आपको रिफाइंड फ्लोर की जगह पे यू कैन यूज अ व्हीट फ्लोर, and definitely sugar is not that much healthy, but you can change the sugar with a brown sugar. नॉर्मल कैस्टर शुगर को ब्राउन शुगर के साथ चेंज कर दीजिए, वो आपका हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज ब्राउन शुगर यू नो कि वो रिफाइंड नहीं होता, तो इट्स हेल्दी फॉर यू। इन दिस स्टेज यू कैन ऐड योर ड्राई फ्रूट्स, बट इट्स कैरेमल, तो डेफिनेटली हम रेसिपी थोड़ा डिफरेंट है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि यू कैन यूज अ ड्राई फ्रूट अगर आपको इसको थोड़ा चेंज करना है, यू डोंट वांट अ कैरेमल फज कुकीज। सो इन दिस स्टेज यू कैन ऐड योर फेवरेट एसेंस, बट एसेंस बहुत ज्यादा नहीं डालना है। एंड बिकॉज अगर आपने ज्यादा एसेंस डाला इसके अंदर तो उसका टेस्ट स्ट्रॉन्ग आएगा और थोड़ा बिटर भी हो सकता है, सो वो ज्यादा नहीं डालना है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, इफ यू लाइक एनी ड्राई फ्रूट्स तो यू कैन ऐड एनी ड्राई फ्रूट्स, जस्ट उसको रफली चॉप कीजिए एंड यू कैन पुट इनसाइड दिस। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, Chef, there are many questions related to measurement. If you can repeat them once again. Yeah, definitely I will repeat it. If you have pen and paper then please write it down. Otherwise you can contact me personally at Delicia Bakers. So we can give you all the recipe, and definitely there is a, because we are giving classes also, so lots of free recipes also there. So you can join me at Delicia Bakers. Any other question? सो प्लीज राइट डाउन द रेसिपी। हम लोग आपको रेसिपी थोड़ा सा लास्ट में बताएंगे, बिकॉज टिल देन आप थोड़ी रेडी हो जाइए, आपका पेन एंड पेपर वट एवर यू हैव टू राइट योर रेसिपी, सो वो आप प्लीज थोड़ा रेडी रखिए, सो यू ऑल कैन राइट इट डाउन। राइट ना हम कैरेमल फज कुकीज बना रहे हैं, तो हमने अपना बैटर ऑलमोस्ट डो हमारा रेडी हो गया है इसका। अभी मैं थोड़ा सा आपके लिए और आपके बच्चों के लिए उसको टेस्टी बनाने के लिए, एज यू ऑल नो कि आप लोगों को एक इंग्रेडिएंट्स होता है बेकिंग का जो बहुत अच्छा लगता है। सो कैन यू गेस इट, कैन यू कमेंट इट कि आपको क्या चीज बेकरी में सबसे बेस्ट लगती है? इट्स जस्ट अ इंग्रेडिएंट, नोट ऑफ पूरा आपका रेसिपी नहीं बताना, सिर्फ एक छोटी सी चीज बतानी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है। किसी भी चीज में अगर हम किसी भी रेसिपी में अगर हम वो ऐड करते हैं तो आप और बच्चे दोनों ही, बड़े और बच्चे दोनों ही बहुत हैप्पीली उसको लाइक करते हैं, एंड दे लव टू ईट दैट थिंग। सो जस्ट कमेंट इट, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। टिल देन मैं वो लेके आती हूँ। Is there any comment? Yeah guys, you can ask me any question. Yeah, please tell me if you have any question. Is there any question? Yeah, there is question from Kanan. Like we are using condensed milk, sugar and caramel fudge. Yeah. Will it not be too sweet? नो 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 करण, हम लोग स्वीटनेस तो यूज कर रहे हैं, 3 टाइप ऑफ स्वीटनेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, नॉट इवन 3, 4 टाइप। मैं आपको भी बताती हूँ हमारा 4th इंग्रेडिएंट इसमें क्या है स्वीटनेस के लिए, बट उन सबका जो क्वांटिटी है वो एक लिमिटेड है, बिकॉज हमने अभी कैरेमल लिया या सॉरी हमने मिठाई में यहाँ पे जो लिया है वो जस्ट 20 ग्राम है, हमारा शुगर है वो 70 ग्राम है ओनली। एंड नेक्स्ट वन, या योर कैरेमल टॉफी
दैट वन इज कम्प्लीटली ऑप्शनल फॉर यू, आपको ऐड करना है, यू कैन ऐड इट, इफ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप इट, सो इट्स कम्प्लीटली योर डिजायर यू वांट टू ऐड और नॉट। एंड इस टॉफी में हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट भी डालते हैं, सी सॉल्ट, सो ये उतना स्वीट नहीं होता। सॉल्ट जब उसके साथ में आता है शुगर के साथ में तो उसको थोड़ा कट करता है, तो वो उतना स्वीट नहीं होता, सो डोंट वरी। सो गाइज, मैं एज आई आस्क यू कि हमारा फोर्थ क्या होगा जो सबको अच्छा लगता है, दैट वन इज द चॉकलेट चिप्स, जो बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगता है एंड अडल्ट्स इज ऑल्सो वेरी लाइक इट। सो हम थोड़ा इस स्टेज पे थोड़ा चॉकलेट चिप्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको स्पैचुला से करना है और नीडिंग नहीं करनी, कुकीज में हम नीडिंग नहीं करते, जस्ट डो को कलेक्ट करते हैं। नीडिंग का सेम पर्पस, अगर आप नीड करते हैं किसी भी डो को तो उसमें ग्लूटेन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमें एक्चुअली यहाँ पे नहीं चाहिए। Yes, sir. There is a question from Sushma Gupta. या बताइए। If we replace maida with atta, then do we need to increase liquid quantity? नो, लिक्विड क्वांटिटी, कुकीज का लिक्विड क्वांटिटी डिपेंड करता है कि वो आपका डो आप कलेक्ट करना इजी है आपके लिए या नहीं है। जस्ट लुक एट दिस, अगर आपका डो इस तरह से कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाए, इट्स मीन इट्स रेडी फॉर कुकीज, वो आपका कुकीज के लिए रेडी है। अगर वो नहीं हो रहा है कलेक्ट, स्टिल अगर स्टिल अगर वो लग रहा है आपको नहीं कलेक्ट हो रहा, देन यू कैन ऐड द योर मिल्क वाटर वट एवर यू वांट, बट आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो मोस्ट ऑफ टाइम वी आर ऑल्सो चेंजिंग, तो नहीं जरूरत पड़ेगा आपको। सेम रेशियो रखिए, देयर इज नो नीड टू ऐड एनी एडिशनल लिक्विड इन दिस। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बेकिंग, तो हम अपना बेकिंग ट्रे ले लेते हैं। आप इस कुकीज को डायरेक्टली ट्रे पे भी बेक कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन पुट अ पार्चमेंट पेपर ऑन दैट, सो आपका वो स्टिक नहीं होगा कुकी एंड इजिली रिमूव भी हो जाएगा। थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, आप तब तक अपने कोई क्वेरीज है तो प्लीज यू कैन आस्क टू मी। देयर इज एनी क्वेश्चन? या अभी आपको अपने हैंड यूज करने पड़ेंगे। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आप जब भी कुकीज बना रहे हैं या बिस्किट बना रहे हैं तो रिमेंबर द पोर्शन आपका हर कुकी का सिमिलर होना चाहिए। या तो फिर आप उसको आपके किचन स्केल से मेजर कर लीजिए, या फिर कुछ भी ऐसा उसको स्कूप करने के लिए कुछ भी ऐसा ले लीजिए, जो आइसक्रीम वो भी ले सकते हैं आप, बट इट शुड बी इक्वल, अदरवाइज आपका जो कुकी छोटा होगा वो जल्दी बेक हो जाएगा, बड़े वाला बेक नहीं होगा। Now again I tell you, उसको जैसे आपको हैंड से कलेक्ट करना है, वो जस्ट ये चेक करने के लिए कि आपका कुकी डो रेडी है या नहीं है। राइट नाउ यू कैन सी, मैं उसको नीड नहीं कर रही हूँ, जस्ट उसको कलेक्ट किया है मैंने। यू कैन सी इसमें जो फैट का क्वांटिटी था वो ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि हमें कुछ और एडिशनल उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स कंप्लीटली रेडी। आपको इक्वल पोर्शंस बनाने हैं पहले उसके। जब आप कोई फिलिंग वाली कुकीज बनाते हैं तो उसमें शेप का टेंशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज वैसे भी आप जब फिल करेंगे तो वो चेंज हो जाने वाला आपका शेप। और जनरली हम उसे बॉल फॉर्म में बनाते हैं, थोड़ा बॉल्स बना के रखते हैं ताकि हमारी फिलिंग में इजी हो जाए, और वो अपने आप ही स्प्रेड हो जाता है जब वो बेक होना स्टार्ट होता है। जस्ट आपको चेक करना है कि उनके पोर्शंस इक्वल होने चाहिए। इज आई एम ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल? कुकी साइज बिस्किट साइज से बड़ा भी होता है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ लिटिल बिगर साइज। Guys, if you have any question, then you can ask me. Yes, if there are queries related to caramel fudge recipe,
So it will be better if you can repeat both the recipe at the end of the session. Yeah, definitely I will repeat the recipe for your caramel cookies and caramel fudge. Yeah, our balls are ready. Just now you need to do is clean your tabletop. Yeah. अभी आप इस बॉल में आपको आपका फज का साइज आपको देखना है कितना आप डाल सकते हैं इसमें. मेक अ होल इन सेंटर में होल बनाना है. देन उसको ऑल साइड से आपको जस्ट उसको कवर करना है. आपको इसको राउंड बॉल बनाना है सर, जस्ट लाइक अ लड्डू. वो तो सबको बनाना आता होगा. लाइक दिस. दिस टाइम आई कांट शो यू टू बेक इट बिकॉज अगर मैं बेकिंग पे लग गई तो इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा. सो आई टेल यू हाउ यू कैन बेक इट. कुकीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी कुकी की जो रेसिपी है वो कितना फैट डिमांड करती है. उसका टाइमिंग उसके फैट पे डिपेंड करता है कि उसको फैट कितना है उसके अंदर. कुकीज में एज आई टोल्ड यू कि कुकीज में ऑलवेज बिस्किट से ज्यादा फैट होता है, तो उसको चिल करने का टाइम भी ज्यादा होता है. हम उसको फर्स्टली हम इसको ऐसे बनाएंगे, सबको सारे रोल को हम फिल करेंगे प्रॉपरली. देन वी कीप इनसाइड द रेफ्रिजरेटर. हमें इसको जब तक वो हार्ड इनफ नहीं हो जाए तब तक हमें इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है. उसके बाद हमें इसको 150 to 160 डिग्री के बीच में आपका जो भी टेम्परेचर हो उस पर आप बेक कर सकते हैं. आपके अवन का टेम्परेचर आपको खुद रीड करना पड़ेगा. क्योंकि दिस मैंने यहाँ पे कोई भी शेप देने का कोशिश नहीं किया है. जस्ट आई मेक अ बॉल हियर. सो जब ये बेक होना स्टार्ट होगा इसमें काफी फैट है एंड इनसाइड हमने कैरेमल फज भी इसके अंदर डाला है, तो अपने आप स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? सो हम इसको फिल करते हुए कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं. होप यू ऑल हैव रेडी विद पेन एंड पेपर सो आई कैन टेल यू द रेसिपी. इफ यू हैव एनी queries after video you can ask me at Dalisha Bakers. We can reply there. Yes, if there is a question from Sweta, do we have to put these balls in fridge or freezer? Only fridge. No, there is no need to freezer. अगर आप थोड़ा जल्दी में है, आपको जल्दी बनाना है, then you can keep inside the freezer also. बट अगर आप जल्दी में नहीं है तो आप आराम से इसको फ्रिज में रखिए, थोड़ा हार्ड होने दीजिए, देन नो इश्यू. बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इसको बेक कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है कि फ्रीजर में रखा या फ्रिज में रखा फिर बाहर निकाल के उसको नॉर्मल किया. नहीं, आपका जब आपके अवन का टेम्परेचर जब रेडी हो जाएगा, अवन का टेम्परेचर इसके लिए आपका 150 या 160 होना चाहिए. बहुत हाई नहीं रखना है इसके लिए बिकॉज इसमें काफी फैट होता है. जैसे आपका अवन टेम्परेचर रेडी हो जाएगा आप डायरेक्ट अपनी फ्रिज से निकाल के अवन में शिफ्ट कर दीजिए. अगर आपने इसको ठंडा नहीं किया रेफ्रिजरेटर में तो आपकी कुकी बिल्कुल स्प्रेड हो जाएगी. इट विल बी लाइक अ केक. पूरे में पूरा शीट आपका ट्रे आपका फिल हो जाएगा उससे. सो डोंट डू दैट थिंग. उसको पहले चिल करना जरूरी है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. Yes, chef, there is a question from Isha. How much time we have to freeze and how much time we have to bake it? फ्रिज के लिए आपको सिर्फ ये चेक करना है जब आप फ्रिज में डाल रहे हैं कि वो थोड़ा हार्ड हो गया हो, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए. सॉफ्ट होगा तो वो बहुत जल्दी उसका बटर जब आप बेक करेंगे तो बटर ऊज आउट हो जाएगा और पूरी आपकी शीट पे बटर हो जाएगा, आपका कुकीज भी परफेक्टली बेक नहीं होगा. सो अगर आप फ्रिज में डाल रहे हैं तो वो थोड़ा हार्ड हो जाना चाहिए. Is there any? Chef Indra is asking any other filling we can. Yeah. You can put your choice filling like chocolate. You can put inside chocolate. आप एक चॉकलेट का स्मॉल पीसेस में कट कीजिए. You can put chocolate inside this.
आप ट्रफल बनाइए चॉकलेट से, गनाश बनाइए चॉकलेट का, उसको थोड़ा हार्ड कीजिए, वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। बट दिस वन इज ऑल्सो वेरी टेस्टी, सो आपको चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट स्टिल इफ यू वांट टू चेंज इट सो यू कैन चेंज इट। अगर आपको इसमें कोई एसेंस ऐड करना है यू कैन ऐड एसेंस ऑल्सो। राइट नाउ मैंने सिर्फ इसमें वेनिला ऐड किया है बिकॉज कैरेमल वेनिला के साथ में बहुत टेस्टी अरोमा आता है उसका। आपको जब इसको लाइन कर रहे हैं तो जस्ट रिमेंबर द थिंग, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि अभी हमने बॉल्स बनाए हैं इसके। आर यू एबल टू सी दिस? या हमें जब इसको प्लेस करना है सीटेड के टाइम पे, रिमेंबर उसमें 1 इंच का गैप होना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ इट जस्ट अ बॉल, एंड जब ये बेक होना स्टार्ट होगा तो ये स्प्रेड होगा, सो उसके लिए उसको स्पेस चाहिए। सो आपको इस तरह प्लेस करनी है कि 1 इंच के साइज पे उसको प्लेस करना है। Chef, there is a question from Sweta Jain. Do we preheat the oven and at what temperature? Yeah, Shweta, we should preheat the oven at 160 temperature, 160 degree, and you have to check your oven also, because in my oven 160 is sufficient for this. बट कुकीज के लिए हम हाई टेम्परेचर नहीं रखते कभी भी, 180 भी नहीं करते कभी, बिकॉज उसमें बटर होता है, सो हम वो सब नहीं कर सकते हैं। अभी मैं इसको फ्रिज में रखने के लिए जा रही हूँ। Yes, Chef, Isa is asking about baking time. बेकिंग टाइम वैसे इसका बेकिंग टाइम 30 मिनट्स है, बट आपको कुकीज को चेक कैसे करना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। कुकी आप जब आपका कुकी आपके ओवन के अंदर होगा तो जस्ट चेक इट वन थिंग, एक तो उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, गोल्डन कलर हो जाएगा। सेकंड, जब आप उसको लिफ्ट करेंगे, आपको हैंड से कभी लिफ्ट नहीं करना, इट्स अ वेरी गुड दैट टाइम, सो हैंड से लिफ्ट नहीं करना उसको। कुछ स्पैचुला वगैरह लेके थोड़ा लिफ्ट कीजिए। अगर आपके कॉर्नर थोड़े हार्ड हो गए हैं देन इट्स बेक, आपको सेंटर में वो सॉफ्ट लगेगा, बट कॉर्नर्स अगर आपके हार्ड हो गए तो उसको बाहर रखिए और थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए आपकी बेकिंग ट्रे पे ही, उसके बाद आप उसको आपको परफेक्ट टेक्सचर मिल जाएगा उसका। बट दिस कुकी बेकिंग टाइम इज 30 मिनट्स। जस्ट अ मिनट। एनी अदर क्वेश्चन? Yeah, right now, as I told you, I can't show you how to bake it right now. But as I told you the temperature, फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं बेक करने लगी हूँ इसे तो 30 मिनट से 1 आवर का टाइम भी ले सकता है। कुकीज में आई टोल्ड यू कि उसका साइड थोड़ा, बॉटम साइड उसका थोड़ा साइड से लाइक दिस, मैंने ऑलरेडी कुछ बेक करके रखा हुआ है, सो यू कैन चेक इट। ये थोड़ा इस साइज का हो जाएगा। मुझे थोड़ा बड़ा पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा सा बिगर साइज बनाया है। साइज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। So let's break it. Look at this. Your caramel fudge. Are you able to see this? अगर ये hot होगा तो ये पूरा properly ऐसे आएगा आपका। Right now it's a chilled, so अभी नहीं है। So you can see the caramel, and it's not that much hard like a biscuit. It's a soft. आपको सिर्फ ये देखना है आपका साइड गोल्डन हो जाए तो बॉटम अपने आप ही वो बेक हो जाएगा। जिस टाइम आप ट्रे को बाहर निकालेंगे आपके ओवन से, उस टाइम आपको लगेगा कि बॉटम बहुत तक थोड़ा रॉ लगेगा, कच्चा लगेगा, सो डोंट वरी, वो उसके ऊपर ट्रे के ऊपर रखा हुआ अपने आप हार्ड हो जाएगा। एंड कुकी है तो यू डोंट नीड दैट मच हार्डनेस, सो उसको थोड़ा सा केकी टेक्सचर में रहने दीजिए। सो इफ यू हैव पेन एंड पेपर गाइस, देन यू कैन राइट द रेसिपी। Yes, sir, there is another question from Manisha Dangra. Yeah, please Do we get caramel ready in market? Yeah, that is a great question. अगर आपको कैरेमल फज नहीं बनाना, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। आपका एल्पेनलिबे या कोई भी टॉफी वाला, इंग्लिश टॉफी वाला कोई भी आपको टॉफी मिलता है मार्केट में, यू कैन पुट दैट टॉफी इनसाइड दिस। उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट इज एवरीथिंग इज टू मच गुड, एंड वो बहुत ही अच्छे से निकलेगा आपका, तो यू कैन यूज दैट थिंग ऑल्सो, बिकॉज रियली फज बनाना देन कुकी बनाना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। भाई हमारा तो काम है, सो आई एम हैप्पी विद ऑल द थिंग्स, बट इफ यू वांट टू शॉर्ट इट
So आप टॉफी लाइए मार्केट से, you can put that. So are you ready for writing the recipe? I'm telling you what's the recipe. Are you ready, guys? So please note it down. आप ready, guys? Yeah, 30 minutes are one person question is there. 30 minutes are not sufficient for cookie baking. देखिए मैंने आपको बताया कि कुकी को आप जब बेक करते हैं तो 30 मिनट्स टाइम डिपेंड होता है आपकी कुकी के साइज पे, उसकी थिकनेस पे. सो अगर आपकी थिकनेस ज्यादा है तो डेफिनेटली वो चीज टाइम ज्यादा लेगी. अगर थिकनेस कम है तो डेफिनेटली वो कम टाइम भी ले सकती है. सो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा. चेक कैसे करना है? आई टोल्ड यू कि आपको सिर्फ उसको ऊपर से आपका कलर गोल्डन हो जाना चाहिए. देन गोल्डन कलर के साथ में नीचे जो बॉटम का रिंग है आपका, कॉर्नर रिंग, नॉट अ इनसाइड रिंग, इट्स आपका जो कॉर्नर रिंग है वो आपका रिंग भी हार्ड हो जाना चाहिए. इट्स मीन योर कुकी इज रेडी. So still if you have any question you can ask me, because very soon we are going to end the session. After telling recipe we are going to end the session. So if you have any question please ask me. Yes, chef, there is one last question before you tell the recipe. Rasmi is asking, can we make without caramel fuzz or with only chocolate chips? Yeah, you can make it. I told you you can change the essence also. Here we use vanilla essence. You can change the essence also. You can change it. And definitely you should change it. ऑलवेज आपको जब कुछ आप बेकिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो जो कुक कर रहा होता है, बेक कर रहा होता है, उसका माइंड ऑलवेज एक चीज पे नहीं जाता है. ऑलवेज वी थिंक कि नहीं कुछ तो आज डिफरेंट होना चाहिए, रोज एक वाली चीज वी कांट ईट. सो यू कैन चेंज इट, यू शुड चेंज इट. एंड प्लीज इफ यू बेक इट, प्लीज शेयर मी ऑन Delicious Bakers. And we have online classes also, so you can join me there, and lots of free videos also, so you can join me, bake and show me. So are you ready for writing the recipe? Here we took a flour, refined flour, it's a 160 gram, castor sugar 70 gram, butter, we use a unsalted butter, Amul unsalted butter, so it's 100 gram, baking powder, sorry it's a baking soda, it's a half teaspoon. Then our mithai mate, Amul mithai mate, it's just a 20 gram, and vanilla essence 1 tsp, and little bit salt in our flour, a pinch, only a pinch. I think all things are done, and if you want to see it again I can show you again. And you can contact me at Delicious Baker, my page. We are a brand in Gurgaon. Thank you guys. If you have any question you can ask me still. So if you don't have question we can. Yeah, so I forgot one thing. Caramel fudge you also wanted. For caramel fudge you need a 200 gram of castor sugar. You can take a brown sugar also. Brown sugar का taste और caramelly आता है, so you can take a brown sugar also. And in that you need to put a 70 gram of your butter. That would be salted, unsalted, completely optional. अगर unsalted ले रहे हैं तो आप थोड़ा salt add कर दीजिए, और थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट. और यू हैव टू टेस्ट इट कि आपका आपके पैलेट पे कौन सा आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है वो. एंड अगर आप सॉल्टेड ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है. एंड विद दिस यू नीड टू ऐड 2 TBSP वाटर ऑल्सो. सो उसको आपको कुक करना है मीडियम टू लो हीट पे कुक करना है आपको. तब तक वो टॉफी का टेक्सचर आपका नहीं आ जाता. यू हैव टू कुक इट. आपको वो कैसे चेक करना है? जस्ट आप उसको उसमें से थोड़ा सा निकाल के, जब आपको लगे इट्स थिक प्रॉपरली, उसको आप थोड़ा निकाल के वाटर में डाल के देखिएगा. अगर वो प्रॉपरली शेप लेना स्टार्ट कर दे, इट्स मीन इट्स रेडी. बट इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन प्लीज कॉन्टेक्ट मी एट Delicious Baker. We will give the reply all there. Thank you guys. So we can finish it right now, or any other question left? Yeah, please tell me.
Yes, chef. Vinita is asking, can we use simple sugar used at home? Yeah, you can just grind it, grind your mixer और फिर आप use कर सकते हैं. There is no issue in that. I think question of Sushma is already replied regarding salted butter. Alamgir is asking, बटर की जगह डालडा और घी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ देखिए, बहुत सारी जगह यूज करते हैं, बट आई एडवाइज यू मच बेटर होगा अगर आप बटर पे जाएं, बिकॉज आपको पता है बाहर कितना कुछ चल रहा है. सो इट्स मच हेल्थियर ऑप्शन देन योर palm oil and your डालडा घी, मच बेटर. बट यू कैन यूज, स्टिल यू कैन यूज इट. बहुत सारी बेकरीज में यूज करते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज इट. हम लोग यूज नहीं करते. एनी अदर? So those who are asking recipe, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डेलिशी बेकर प्लीज. वहां पे आपको रिटन रेसिपी मिल जाएगा. यू कैन आस्क मी देयर. यहाँ पे मैं रिटन डाल नहीं पा रही थी, सो यू कैन आस्क मी देयर. आपको वहां पे रिटन रेसिपी मिल जाएगा. यू कैन कॉन्टेक्ट मी, इट्स माई लोगो, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट डेलिशी बेकर्स. Thank you guys. Thank you so much. Bye bye. See you at Delicious Bakers. Thank you Amul for giving this opportunity. Thank you.